केमिस्ट्री की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका इन द चैनल केमिस्ट्री बाय कुणाल सर चैंपियंस। आई एम कुणाल sir with 7 years of teaching experience in state board, CBSE board and ISC board with board examinations and competitive examinations. So this is the third part of unit number 4 chemical kinetics up to second part that completed till zero order reaction and first order reactions equation derivation. That was one of the most important 3 to 4 mark question of this chapter and one of the most important equations for examples also. So let's begin the show with the third part of unit number 4. And as you know, the methodology is first I will explain the concept and then questions with mark distribution, and then finally number 3, the most important part for student, and it is yes, handwritten notes. Correct. Okay. So let's my motion becomes smaller, make your motion larger and larger. Really. Yes. So zero order reaction and first order reaction, that was again most important part for examples and MCQ also. So let's make a list of equations. देखिए, अगर आपको zero order reactions के equations याद है, it's very easy to remember first order reaction equation. कैसे? तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों के कॉमन इक्वेशंस का लिस्ट बना देते हैं। रिएक्शन नंबर 1 कौन सा था? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. यस, फर्स्ट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. करेक्ट. ओके. एंड यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस साइड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इक्वेशन लिखेंगे और इस साइड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस लिखेंगे. अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है बाय द वे? इफ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफ रेट तरफ लिखा है वैसे ही लिखते हैं, इफ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके. Now zeroth order reaction differential rate equation कैसे लिखोगे? माइनस dr अपॉन dt is equal to k, because r raised to 0, anything raised to 0 is equal to 1. Correct. Okay. And here for first order reaction, minus dr upon dt is equal to k into r, because r raised to 1 is equal to r. Correct. Yes. Now second after differential rate equation, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. और आपको याद होगा तो इसमें अपन ने क्या किया था? हाँ, दोनों में ग्राफ ड्रॉ किए थे. करेक्ट. सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन कौन सा था? कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू RT minus KT plus R0, where R0 is initial concentration, K is rate constant and T is time. Now for first order reaction, it is log RT माइनस, देखो अगर कोई मान लो भूल गया तो कोई बात नहीं, वही का वही फिर से लिख दो. RT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0. चलो लिख दिया. अब RT और R0 के आगे क्या लगाना है आपको? लॉग लगाना है ना? लॉग लगाना है. अच्छा, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर ले. फाइन. लॉग लगाना है. और अगर इन दोनों के आगे लॉग लगा लिया, देन K डिवाइडेड बाय 2.303. So this is the integrated rate equation for first order reaction. Yes, now C is rate constant. Yes, rate constant. So rate constant के लिए what is the equation of K for zeroth order reaction? Huh? Yes, initial concentration minus concentration at time t divided by required time for the change in concentration, that is equal to t. Now for first order reaction, the same, K is equal to 2.303 divided by t. So जैसे इसमें वैसे इसमें t डिनोमिनेटर में ही रहा, लेकिन लॉग के आ जाने की वजह से 2.303 से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया. Initial concentration of reactant, that is R0 divided by concentration at time t, that is RT. चलिए, so ये हो गया रेट कांस्टेंट का इक्वेशन. हाईली यूज्ड इक्वेशन इन एग्जांपल्स एंड एमसीक्यूज. करेक्ट. नंबर डी. यस, क्या था बोल रहा हूं? हाफ लाइफ पीरियड है ना? The time required for the reaction, initial reaction to be completed half or half consumed, is known as half life period. So half life period for zeroth order reaction, T1 half is equal to R0 divided by 2K. while for first order reaction, एक मिनट, हाँ बस सही है.
and for first order reaction T1 half is equal to 0.693 divided by K. So these are the four equation. करेक्ट, इसमें से जो रेट कांस्टेंट का इक्वेशन है उसका यूज अपन आगे वाले क्वेश्चन में भी करेंगे. तो एक और बात याद कर लेते हैं, कहीं पे भी अगर आपको रेट कांस्टेंट का इक्वेशन आए, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, so what you have to do is K is equal to 2.303 divided by T log R0, that is initial concentration, and RT is equal to initial product. अब आप बोलोगे if the reaction is carried out in gaseous medium then we can we take R0? Nah, in that case we have to take pressure at time 0 and pressure at time t. तो ऐसे एग्जांपल्स के लिए क्या करना है जो किसमें हो रहा है, गैसियस मीडियम में हो रहा है. यस, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कैरिड आउट इन गैसियस मीडियम, देन डिराइव द इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट. तो एडवांस में बोल दिया कि भाई आई एम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो यू हैव टू यूज K is equal to 2.303 divided by T log R0 upon RT. लेकिन R0 और RT की जगह प्रेशर टर्म यूज करना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज फॉर गैसियस मीडियम प्रेशर इज कंसिडर्ड एज कंसंट्रेशन. बहुत सिंपल सा हिसाब है. दो बलून है अपने पास, एक छोटा एक बड़ा है, तो किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? जो बड़ा है. अच्छा, मतलब जो ज्यादा हवा से भरा है. अच्छा, तो आप क्या बोलोगे अभी, किसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? बट नेचुरली हायर द साइज, हायर द वॉल्यूम, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ गैस, है ना. चलिए, नाउ टू डिराइव द रेट कांस्टेंट इक्वेशन वी हैव टू टेक any reactions. So let a balance reaction is a gaseous. We have to take all the reactants and all the product in gaseous phase. करेक्ट. चलिए, अभी क्या करना है अपने को, क्योंकि भाई ये तो क्या है, गैसेस है, तो गैसेस का क्या लेना पड़ेगा, प्रेशर लेना पड़ेगा. तो अब यहाँ फिर से एज्यूम करना पड़ेगा. बताओ पीआई क्या होता है, बताओ R0 क्या होता है, इनिशियल. बताओ पीआई क्या होता है, इनिशियल प्रेशर. तो इट्स इनिशियल प्रेशर ऑफ ए. तो पीए भी बोल सकते हो, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस ए. ठीक है. नाउ पीए, पीबी, पीसी, पीए, पीबी, पीसी, दिस थ्री आर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली. करेक्ट. जो भी अपन ले रहे हैं, जो भी एज्यूम कर रहे हैं, उनको नोमेनक्लेचराइज करना जरूरी है, तो उनका नाम लिखना जरूरी है ना. तो पीए, पीबी एंड पीसी, इट्स प्रैक्टिकल कहां से आया, पार्शियल. पार्शियल आएगा, इट्स अ पार्शियल और इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ gas. Here we have three gas, that is A, B and C, and में लिखना जरूरी है respectively. करेक्ट. फाइन. अभी एक बात समझो, याद करो इक्विलिब्रियम में क्या करते थे जब कोई रिएक्शन दिया होता तो अपन पहले उस रिएक्शन को ऐसे लिखते थे विथ बैलेंसिंग मोड. तो अभी अपन ये एज्यूम किया है शुरुआत से ही कि भाई ये A कन्वर्ट्स इनटू B गैसियस प्लस C गैसियस, दैट इज ऑलरेडी इन बैलेंसिंग. करेक्ट. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू 1. अब याद करो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर क्या करते थे, फर्स्ट कॉलम में लिखते थे इनिशियल कंसंट्रेशन, और अगर प्रेशर होता तो लिखते थे इनिशियल प्रेशर, और इनिशियल प्रेशर का यूनिट कौन सा आएगा, बार. करेक्ट. इनिशियल प्रेशर एट टाइम t इक्वल टू 0. थोड़ा सा पर ले है. चलिए, इसके बाद अपन क्या लिखते हैं, इक्विलिब्रियम प्रेशर. यस, इक्विलिब्रियम प्रेशर. अब बताओ इनिशियल प्रेशर कितना है. तो लेट इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी आई. एक बात बताओ, इनिशियल प्रेशर बी और सी का कितना आएगा, 0 आएगा भाई, बिकॉज प्रोडक्ट आर जस्ट टू फॉर्मेट. इनिशियल टाइम व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट इज नॉट देयर, सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. इक्विलिब्रियम प्रेशर के लिए याद कर क्या करते थे, जरा याद करवा दो. तो लेट एक्स एज्यूम करते थे, तो लेट एक्स इज इक्वल टू decrease in, that x is equal to decrease in concentration of A, decrease in concentration of A, और उसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं increase in concentration of either B और C. करेक्ट. चलिए, तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि भाई B और C का तो इनिशियल प्रेशर कितना है, x है. अभी ये आया कहाँ से, तो PI में से, तो PI माइनस x कर दो. तो ये PI माइनस x इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ A. करेक्ट. चलो,
उसके बाद क्या करते थे, x के वैल्यू डिराइव करने की कोशिश शुरू करते थे। तो नाउ एज पर, जिसका भी लो यूज करो उसका नाम लिखना है। एज पर डाल्टन्स लो, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। ये डाल्टन ने तो यही तो बोला था, है ना। नाउ PT इज इक्वल टू, पीए का वैल्यू कितना है, पी माइनस एक्स। अच्छा पीटी क्या है, इट्स एन इक्विलिब्रियम प्रेशर एट टाइम टी। पी माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी बोले तो एक्स प्लस पीसी बोले तो एक्स। तो एक एक्स फुर्र हो गया। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, पीटी इज इक्वल टू आई प्लस एक्स, यस। एंड हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू पीटी माइनस पीआई, पीटी माइनस पीआई। This is the equation of x and this value required for getting the equilibrium concentration of A. Fine. So now at equilibrium, at आपको पूरा लिखना है, at equilibrium PA is equal to PI। अब आप पूछोगे क्यों, PI माइनस एक्स ऊपर तो लिखा है ना, तो PI माइनस एक्स का वैल्यू कितना है भाई, PT माइनस PI। तो ये माइनस है तो ये अंदर वाला प्लस हो जाएगा। उसके हिसाब से गैस ए का इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना होना चाहिए, 2pi माइनस पीटी जितना होना चाहिए। तो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए और ऑफ रिएक्टेंट ए। करना क्या पड़ेगा, अभी इसको सीधा रख देते इक्वेशन पे। बोला तो है ऊपर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या करना है भाई, रेट कांस्टेंट का यूनिट डिराइव करना है। तो पहले वो जो पुराना है वो तो लिखना पड़ेगा, करेक्ट। सो k इज इक्वल टू, क्या कर रहा हूं, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log r नॉट अपॉन आर टी। लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन नाम की तो कोई चीज है ही नहीं भाई। क्या लिखोगे इसकी जगह, इसकी जगह ऐसे लिखोगे, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log pi अपॉन। अब बताओ क्या करूं, दिस इज टी कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे भी अपन लिखेंगे टी कंसंट्रेशन, है ना। लेकिन टी टाइम पे पीए का कंसंट्रेशन कितना है, जैसे टी टाइम पे आर का कंसंट्रेशन होता है वैसे टी टाइम पे पीए का कंसंट्रेशन कितना है। इट्स लाइक 2pi माइनस पीटी, 2pi माइनस पीटी। और बढ़ो आगे धमधमाट, हाँ बट रुक जाओ, ये एग्जांपल यहाँ पे, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। सिंपल एक ही काम करना है कि ध्यान अपने को x एज्यूम करने में और उसकी वैल्यू असाइन करने में रखना है, करेक्ट। So this is about the first order reaction, gaseous medium, and this is the equation of rate constant for the first order reaction in gaseous medium, correct। Okay, so now let's move towards the interesting area, है ना। hand written notes, first order reaction occurring in gaseous medium। तभी क्या करना था आपको, डिराइव इक्वेशन करना था फॉर रेट कांस्टेंट। स्क्रीनशॉट नंबर 1, रेट कांस्टेंट से फिर से ले लेते हैं स्क्रीन पर 2, चलिए। Then we are going to focus on pseudo first order reaction and derive the equation for rate constant of the same। क्या बोला है, कुछ नई बात की है। आपको पता होगा जब आप रन में जाते हो डेजर्ट, तो एक हिरन होता है, उसको दिख रहा होता है कि वहां पे पानी है, तालाब आ गया, अब मेरी प्यास बुझ जाएगी, और वो तालाब के पीछे भागता है। और वो जितना जाता है तालाब भी उतना ही आगे खींच सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे क्या कोई पाउंड था, कोई तालाब था नहीं, लेकिन सूरज की किरणों की वजह से उसको ये आभास हो रहा था, ये फील आ रही थी भाई देयर इज सम वाटर फ्लोइंग। तो वो वहां पे पहुंचता था, लेकिन वो वहां पे पहुंच नहीं कभी सकता था, बिकॉज इट्स एन इमेजिनरी कंसेप्ट। एन इमेजिनरी कंसेप्ट, द ग्रीक वर्ड इज स्यूडो, स्यूडो, है ना। चलो अभी पहले एग्जांपल समझ, के बाद अपन आते हैं अपने पॉइंट। क्या बोला है एग्जांपल में, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है वो समझा दो, और इसके लिए रेट इक्वेशन क्लियर कर दो, बस खत्म होगी बात। तो क्या होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके लिए अपन पहले एग्जांपल लेंगे। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इसके मार्क्स मिलेंगे 2। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि अपन ने क्या किया, CH3
COO CH3 प्लस H2O, मतलब मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो H प्लस इट कन्वर्ट्स इनटू CH3 COOH प्लस CH3OH। अब इस रिएक्शन में अपने को करना क्या है? So this reaction is actually known as hydrolysis of ester. This is the compound called methyl ethanoate. Correct. Actually ये एरिया आता है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एरिया, दैट इज कॉल्ड द नोमेनक्लेचर। करेक्ट। तो ज्यादा डिटेल में इसका नोमेनक्लेचर मिथाइल इथेनोएट है, दैट विल सी अंडर द एरिया ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। करेक्ट। चलिए, so next is our goal of area is methyl ethanoate on hydrolysis it converts into acid, that is actually ethanoic acid, plus alcohol, that is actually methanol, acid plus alcohol. Initially water is taken in 55.55 molar amount, while methyl ethanoate is taken in only 0.01 molar amount. Initial concentration of product is always and always 0. So this is about the initial concentration. Now as methyl acetate is taken only in 0.01 molar, so as it is a limiting reagent, it's utilized first. Water is utilized in only 55.54 molar maximum. Correct. So here instead of writing 55.54 we can write 55.55 molar, और ये कितना बनेगा? 0.01 मोलर बनेगा, और ये भी तो 0.01 मोलर बनेगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि at the end of reaction there is almost no any change in concentration of reactant water? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ, यहां से एक नई बात शुरू होगी, ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of water or concentration of only methyl ethanoate का, yes, concentration of only methyl CH3 COOCH3, concentration of only methyl ethanoate. So R is equal to K into CH3 COOCH3। आप बोलेंगे कि भाई ये डिसीजन कैसे लिया? इट्स वेरी सिंपल। क्या H2O के कंसंट्रेशन चेंज करने से प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा? नहीं होगा। अगर एक बार ये 0.01 मोलर वो सब पूरा यूटिलाइज हो गया, फिर आप H2 का चाहे जितना इंक्रीज कर लो चाहे जितना डिक्रीज कर लो, will not impact will not have any impact on concentration of products, and that's why it said that rate of reaction only and only depends on one reactant। अच्छा, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो initially H2 और H2 भी लिख सकते हो। So now this reaction becomes a first order reaction. Initially आपने क्या सोचा था? ये second order reaction हो सकता है। Why? Because in this reaction two reactants are participate. That was right. Two reactants are participate, but there is no change in concentration of another reactant which is taken in larger amount. So this type of reactions are known as pseudo first order reaction। तो सबसे पहले अपने को definition है। What is the definition? Theoretically, some reactions like this, theoretically, some reactions are initially seen as second order reaction in some particular condition. The reactions are behaves as a first order reaction like this reaction. Such type of reactions are known as pseudo first order reaction. The word is in particular condition. Now you ask in which are the condition? तो भाई इन दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब अपन ने एक्सेस अमाउंट में लिया है तो उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, या तो अगर चेंज होता भी है वो बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में होता है। इन दिस कंडीशन द रिएक्शन एक्ट्स एज द रिएक्शन वर्क एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। करेक्ट। We can also take the example of C12H22O11 plus hydrolysis of sucrose. It converts into C6H12O6 plus C6H12O6, that is glucose plus fructose. We can write R is equal to K into concentration of C12H22O11 raised to 1 by H2O raised to 0. Correct. So this is again acid catalyzed inversion reaction of
inversion reaction of sucrose. Now, what about the rate equation or rate constant equation? So concentration of H2O is taken as constant. अगर उसको कांस्टेंट नहीं काउंट करते तो ये रिएक्शन हाँ सेकंड ऑर्डर हो सकता है, बट कोई भी कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मतलब रेट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, एंड इट इज 2.303 डिवाइडेड बाय टी log, so r0 upon rt. So this is our final equation for the reaction occurs in फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम, करेक्ट। और अगर मान लो ये एस्टर के लिए होता तो आर की जगह मिथाइल एसिटेट, है ना। तो नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द हैंड रिटन नोट्स। यस, हियर इट इज। तो सबसे पहले आपको लिखना है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डेफिनेशन। इट्स बेटर टू राइट, ऑलवेज इट्स बेटर टू राइट इन इन्वर्टेड कॉमा, एक गुड इंप्रेशन क्रिएट करता है ना। उसके बाद आपको ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है कि भैया कौन सा कंडीशन है जिसमें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। स्टॉप एंड राइट और स्टॉप एंड टेक स्क्रीनशॉट। एंड फाइनली रिएक्शन तक तो आपने ले लिया, चलिए चलो और हो जाएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेट्स मूव टुवर्ड्स explain the temperature dependence of rate constant, or explain the Arrhenius equation and derive the proper equation which gives the relationship between rate constant and temperature। पूरे चैप्टर से टोटली अलग बात करने वाला क्वेश्चन है। पूरे चैप्टर में अपन ने क्या बोला भाई, इट्स कॉल्ड रेट कांस्टेंट, व्हाई, बिकॉज इट्स वैल्यू डू नॉट चेंज एट डिफरेंट कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम। इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 100 डिग्री सेल्सियस throughout from starting to end, then its rate constant will never change। माने रेट कांस्टेंट को कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन बाद पे आरएनएस ने बोला रुको रुको, आई हैव एन ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। रेट कांस्टेंट को एक चीज है जो चेंज कर सकती है और वो है टेम्परेचर। तो आरएनएस को बोला कि अच्छा भाई कैसे चेंज करता है, तो फ्रॉम सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आरएनएस प्रूव दैट, स्टेटमेंट वैसे अपन बाद में लिखेंगे, आरएनएस प्रूव दैट if you increase the temperature of any system by 10 degrees Celsius, then value of rate constant becomes double। रेट कांस्टेंट का वैल्यू डबल हो जाएगा, इसका मतलब ये भी होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन विल गोज ऑन डबल और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ओनली बाय 10 डिग्री सेल्सियस। कैसे, वो अपन एक्सपेरिमेंटली बाद में समझे, पहले इस क्वेश्चन को थ्योरेटिकली समझ। इसलिए आरएनएस ने क्या बोला, एक इक्वेशन दिया and that is called Arrhenius equation, very important equation। A is equal to, for chemical reaction that occurs in gaseous phase, if we increase the temperature by 10 degrees Celsius, its rate constant becomes double। So rate constant A is equal to A into e raised to minus A upon RT। Now let's explain the term, what is K। K कौन है, K for कुणाल ना, K for, चलिए रेट कांस्टेंट, विदाउट के चलेगा नहीं आपको केमिस्ट्री, है ना। ए, ए फॉर आर्हेनियस कांस्टेंट, और इसका दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और इसका एक और नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। फाइन, नाउ व्हाट इज ईए। ईए इज कॉल्ड, that is again one of the important factor in chemical kinetics, and that is activation energy, activation energy। Yes, what is R, that is you already know, R is universal gas constant and T is temperature, the value of universal gas constant in this chapter. For this type of example we have to take in joule mole inverse Kelvin inverse, why, because unit of EA, that is activation energy, is taken as joule, करेक्ट। नाउ व्हाट इज ईए, एक बात अपने को क्लियर हो गया, ई रेज टू माइनस ई अपॉन आर टी। एक बात अपने को क्लियर हो गया कि भाई ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब तक किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन एनर्जी ई से ज्यादा नहीं होता, तब तक उनका कन्वर्जन प्रोडक्ट में नहीं होगा, ये कंफर्म है। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आगे एक और क्वेश्चन आएगा, अपन डिटेल में जानेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल
that goes take part into the reaction, the fraction of molecule that take part into the reaction, मतलब ये वो fraction of molecule है जो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, पहले नहीं कर रहा था, अब कर रहा है आफ्टर द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, so that fraction is known as e raised to minus e upon RT. करेक्ट। अभी एक इक्वेशन अपन लिखते हैं and that is H2 plus I2, कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं, H2 plus I2 it converts into 2HI। करेक्ट। करना क्या, अपने को एक ग्राफ ड्रॉ करना है। मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था कि भाई ये y एक्स और x एक्स पे कॉमन कॉपी पेस्ट कर लो दिमाग में, और उस वक्त पहली बार बोला था एक आध ग्राफ को छोड़कर। करेक्ट। तो इसमें y एक्स पे कंसंट्रेशन और टाइम वाला हिसाब इसमें नहीं है। करेक्ट। y एक्स पे क्या लेना है, एक्टिवेशन एनर्जी और कैटलिस्ट के सभी ग्राफ में। y एक्स पे अपने को लेना है यस पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, और x एक्स पे अपने को लेना है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, माने टाइम टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। तो इट्स रिएक्शन कोऑर्डिनेट। कोई भी रिएक्शन, जो रिएक्टेंट कोई भी रिएक्शन करने के लिए आया है, it definitely have some of the energy, and that some energy already having with the reactant is known as activation energy, sorry average energy, average energy already carrying by the reactant, माने ये वो एनर्जी है जो ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास होती। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जीरो होके नहीं आता, आप 11th में आए, आप 12th में आए, मतलब 1 to 10 तो पढ़ के आए हो, जीरो से थोड़ी स्टार्ट करेंगे। तो ये बात है यहाँ पे कि भाई थोड़ा तो एक्टिवेशन एनर्जी उनके पास होगा, लेकिन जितना नॉलेज आपके पास है, क्या वो 12th बोर्ड क्रैक करने के लिए इनफ है? नहीं, तभी तो क्लासेस में जाना पड़ता है, तभी तो लेक्चर्स अटेंड पड़ते हैं। क्यों, क्या होता है लेक्चर्स अटेंड करने से? बाहर से आपको कुछ एनर्जी दी जाती है जिससे आप एक्टिव होते हो। मान लो ये एक पहाड़ है, इस पहाड़ को कंप्लीट करने के लिए आपके पास यहाँ लाकर छोड़, अब इसके ऊपर तो आपको खुद से चढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इस पहाड़ को क्रॉस करके इस तरफ नहीं जाओगे तब तक रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में नहीं होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, H2 plus I2 जब तक इस पहाड़ को क्रॉस नहीं करेगा तब तक उसका कन्वर्जन HI में नहीं होगा। करेक्ट। तो इतना एनर्जी तो था, लेकिन इतना एनर्जी इनफ नहीं था इस पहाड़ को क्रॉस करने के लिए। तो इस पहाड़ को क्रॉस करने के लिए बाहर से जो एनर्जी दिया, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी गिवन फ्रॉम आउटसाइड टू द रिएक्टेंट। मान लो ये ऐसी बात है कि आप मिल्क को उबालना चाहते हो, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ मिल्क क्या उबल जाएगा? नहीं उबलेगा। क्यों नहीं उबलेगा? क्योंकि उतना उसके पास टेम्परेचर नहीं है। तो आप बर्नर ऑन करके बाहर से टेम्परेचर दोगे, बाहर से आपने जो टेम्परेचर दिया दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो टोटल एनर्जी ग्रेडियंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो EAV है, ये तो आप क्लियर समझ सकते हो अभी। करेक्ट। और ये जो टोटल एनर्जी ग्रेडियंट है, टोटल एनर्जी इज कॉल्ड EH, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी और बाहर से जो एनर्जी है, इन दोनों के मिलन से टोटल एनर्जी का जो बैरियर है वो क्रॉस कर जाएगा। दिस पहाड़ इज नोन एज एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। करेक्ट। क्या कर रहे हैं अपन, आरएनएस इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए निकले हैं, स्टार्टिंग किया इस क्वेश्चन। फाइन। अब एक बात समझ लो कि आरएनएस ने क्या बोला कि भाई जब तक आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का वैल्यू ये से ज्यादा नहीं होगा, मतलब इस पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा, तब तक इनका कन्वर्जन प्रोडक्ट में नहीं होगा। अगर मान लो कि भाई नॉर्मल टेम्परेचर पे ये काम नहीं हो सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे ही आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ये एनर्जी बैरियर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर जाएंगे, और अगर ऑलरेडी कुछ मॉलिक्यूल्स ने क्रॉस किया हुआ है तो और भी मॉलिक्यूल्स आएंगे जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके जाएंगे। So this graph gives just an explanation about the activation energy and threshold energy combination. Correct. अच्छा. Now back to the RNS equation. What is RNS equation? A is equal to A into e raised to minus EA upon RT by taking ln on both sides. Right. So ln K is equal to ln A plus ln E raised to minus A upon RT, है ना? तो ग्राफ पे मैं एक बात एक्चुअली बोलना भूल गया कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये पॉइंट, ये जो मैंने ब्लू कलर का पॉइंट लिखा है उसके ऊपर, ये ब्लू कलर के पॉइंट के ऊपर
आपको ये शो करना है, मतलब ये H2 है और ये I2 है, इनके पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने के लिए इसको जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो अब देखिए ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e, मतलब प्लस ln e रेज टू माइनस e अपॉन RT। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना है। भाई इसे करोगे भाई, ln k इज इक्वल टू ln a ln e बेस e, तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, लेकिन ये जो एक्सपोनेंट में e अपॉन RT है वो आगे आ जाएगा, माइनस के साइन के साथ आएगा, सो माइनस a अपॉन RT ln e बेस e यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ln e बेस e इज इक्वल टू 1। करेक्ट, ln e बेस e इज इक्वल टू 1। कट रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं। फाइन, अभी इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन पे पहुंचेंगे, एंड दैट इक्वेशन गिव्स द आइडिया अबाउट द लीनियर फंक्शन ऑफ, चलो तो क्या था इक्वेशन, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस a अपॉन RT। अच्छा, ये आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। फाइन, ln k इज इक्वल टू माइनस a अपॉन r, इन दोनों को ब्रैकेट में रखकर t को अलग कर लेते हैं। भाई t को अलग क्यों किया? देखो एक ही रिएक्शन के लिए E का वैल्यू फिक्स है, R का वैल्यू तो यूनिवर्सल में हमें हर जगह फिक्स होता है बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, प्लस ln A। तो अभी चेंज क्या हो रहा है? टेम्परेचर। अपने को इस क्वेश्चन में दो ही चीजों को चेंज करना है, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर। तो यहाँ से एक और बात समझ में आ गई कि जब जब ग्राफ ड्रॉ करो आर्हेनियस के, तो उसमें y एक्स पे रेट कांस्टेंट आएगा और x एक्स पे टेम्परेचर आएगा। तो नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ln k वर्सेस 1 by t। एक बात बताइए, this equation this looks like the equation of y is equal to m x plus t। अच्छा, यहाँ पे जो ग्राफ है, do the graph passes from the zero? ना, the graph is in increasing format, increasing line, or it we get the decreasing line। So first of all it do not get passes from the zero and we get the decreasing line। क्यों? Because slope zero है इसलिए, और टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट एक दूसरे के साथ इंक्रीज होते हैं, लेकिन अगर मान लो 1 अपॉन टेम्परेचर है तो बट नेचुरली वो इनवर्स में है, तो ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, सीधा सा हिसाब है ना। तो ऑन y एक्सिस इक्वेशन पे भी ध्यान देना, ऑन y एक्सिस वी हैव ln k एंड ऑन x एक्सिस वी हैव 1 बाय t। चलो, तो इक्वेशन इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा? भाई बहुत सिंपल सा हिसाब है, ये इक्वेशन डिक्रीजिंग, मतलब जो ग्राफ का लाइन है वो डिक्रीजिंग आएगा। ये लो, करेक्ट। हाँ, अभी ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये किसका वैल्यू देगा? ये ln a का वैल्यू देगा। दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ ln a। तो इस पे जो भी वैल्यू आता है अपन उसका क्या करेंगे, इसको लॉग में कन्वर्ट करने के बाद अगर एंटी लॉग ले लोगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ a दैट इज आर्हेनियस कांस्टेंट। करेक्ट। तो इसके स्लोप का वैल्यू क्या आएगा? हाँ, इसके स्लोप का वैल्यू आएगा माइनस ए अपॉन आर। तो अगर आपको ये का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, स्लोप का नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ ln k वर्सेस 1 अपॉन t और टेम्परेचर। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन फॉर द एग्जांपल। तो from equation number 2, अच्छा कौन से इक्वेशन को, पहला तो आर्हेनियस इक्वेशन था, फिर ये जो इक्वेशन है ln के, ये रहा ये वाला, तो अपन इक्वेशन नंबर 2 करार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाना है। अभी अपने को क्या करना है कि कोई भी एक टेम्परेचर लेना है, कौन सा? T1। तो उस पे रेट कांस्टेंट कितना होगा भाई? K1। करेक्ट। तो कैन आई राइट ln k1 इज इक्वल टू ln a, ये तो आर्हेनियस कांस्टेंट है वो तो चेंज होगा नहीं, माइनस ea, ये भी फिक्स रहता है एक ही रिएक्शन के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी एक रिएक्शन के लिए होता है, माइनस ea अपॉन r t1। देखिए यहाँ पे सिर्फ k1 और t1 चेंज होने वाला है। करेक्ट। सो दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर
3 and again a new temperature T2, again a new rate is equal to K2. अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ln K2 is equal to ln A minus K upon R, यस RT2। बोलो अब ये कौन सा इक्वेशन बन गया भाई, तो बन गया अपना इक्वेशन नंबर 4। अभी इक्वेशन नंबर 4 में हायर टेम्परेचर है और इक्वेशन नंबर 3 में लोअर टेम्परेचर है, तो लेट्स सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3, LHS माइनस LHS। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन नंबर 4 करना है तो पहले 4 वाला हिसाब यहाँ पे कर लेते हैं कि ln A माइनस A अपॉन RT2, चलो माइनस, अभी RHS माइनस RHS करते हैं, तो ln A माइनस, अभी मैं माइनस का माइनस रखता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करो, अच्छा यहाँ माइनस मैंने 2 बार लिख दिया, ये उड़ा देते हैं, माइनस ये अपॉन RT1। अब जरा ध्यान से देखो, ln A कैंसिल आउट फुर्र हो गया वो, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो RT1 वाले टर्म को अपन आगे ले लेंगे और RT2 वाले टर्म को अपन पीछे रखेंगे, करेक्ट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब लेफ्ट साइड क्या था, ln K2 माइनस ln K1, सो इट इज ln K2 डिवाइडेड बाय K1, ln x माइनस ln y। log और ln के बेसिक रूल्स तो सेम है, करेक्ट। और यहाँ पे क्या लिखोगे, EA अपॉन R अपन ने कॉमन निकाल लिया, एंड T2 वाला जो टर्म था क्योंकि वो प्लस में कन्वर्ट हो चुका है तो उसको अपन क्या करेंगे, अच्छा अभी क्या एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे T1 वाला जो टर्म है वो अपन आगे रखेंगे, क्यों, क्योंकि वो प्लस में था, करेक्ट। सो 1 अपॉन T1, हाँ T1 प्लस में था, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन T2, हो गया, हो गया ना। नहीं, एक काम बाकी है, ln को log में कन्वर्ट करना बाकी है, तो ln को log में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, ln x is equal to 2.303 log x, तो log K2 by K1 that remains as it is, और यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये जो 2.303 है हम इधर ला देते हैं, ये अपॉन 2.303 इनटू, एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। बहुत आसानी से इक्वेशन को याद रखना, देखो 2 1 और यहाँ पे भी नीचे भी आप 2 1 लिख दोगे तो चलेगा, सो इट्स 21 ऊपर नीचे 21 माइनस में और एंड में 21 मल्टीप्लिकेशन में T2 लिख देना। So this is the final equation of Arrhenius which gives the relationship between rate constant K and temperature T। आपको दो टेम्परेचर दिए है, एक रेट कांस्टेंट दिया है और बोला है दूसरा रेट कांस्टेंट फाइंड करो, सो यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन। अगर एग्जांपल में कहीं पे भी एक्टिवेशन एनर्जी दिया हो या फाइंड करना हो, यही इक्वेशन आएगा, इसको अलावा और कोई इक्वेशन आएगा। so this is about one of the most important 4 marker question of this chapter and that is Arrhenius equation, correct। and here comes the handwritten notes, तो handwritten notes का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, ले लो आप, चलो देन यहाँ से फिर परफेक्ट कर देते हैं। ग्राफ अभी ग्राफ अपन नेक्स्ट में ले लेंगे, ये हो गया ग्राफ वाला पार्ट, चलो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 तक, 1 2 3 आगे बढ़े, यस। अभी ग्राफ के बाद वाला पोर्शन ये हो गया, दैट्स ऑल, बस इतना ही तो है, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So here is the next question, number 17. What is activation energy and explain the graph of activation energy. See, it's again a simple and logical question. बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि इस पर से कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में, करेक्ट, लेकिन एमसीक्यू तो कहीं से भी निकल सकते हैं, तो उसके लिए अपने को हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। कि एक्टिवेशन एनर्जी पहले तो उसके नाम पर से ही पता चलता है कि भाई एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन, करेक्ट। हाँ, डिटेल में अभी अपन देखेंगे, सबसे पहले इसके ग्राफ को एक्सप्लेन कर देते हैं, जो ऑलरेडी आर्हेनियस इक्वेशन में अपन ने एग्जांपल किया था, बस वही एग्जांपल यहाँ फिर से एक्सप्लेन करना, करेक्ट। हाँ,
सी वाई एक्स पे अपन ने क्या लिया था, वाई एक्स पे अपन ने लिया था, आपको पूरा लिखना है पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्स पे अपन ने क्या लिया था, रिएक्शन रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लिए, करेक्ट, यस। और उस वक्त मैंने बोला था कि इनिशियल एनर्जी थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन बाहर से अपन जो एनर्जी सप्लाई करते हैं वो एनर्जी कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी, और वो एनर्जी हेल्प करता है रिएक्टेंट को एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में। तो ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर गया, करेक्ट। अब अपने पास दो रिएक्टेंट है, H2 plus I2, it converts into and our product is HI, 2HI, करेक्ट। देखो अभी ये जो इसका एपेक्स पॉइंट है वो है मैक्सिमम, दिस इज एक्चुअली नोन एज एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, क्रॉस करवाने के लिए रिएक्टेंट को बाहर से जो अपन ने एनर्जी दिया दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये इतना जो है दैट इज ऑलरेडी एनर्जी ऑलरेडी हैविंग विद द मॉलिक्यूल एवरेज एनर्जी। अब होगा क्या कि H2 प्लस I2 ये दोनों एक दूसरे के जो पुराने बॉन्ड है वो तोड़कर नए बॉन्ड बनाएंगे, तो इनिशियली इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, करेक्ट। एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड इट्स नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब तक ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा भाई, तब तक प्रोडक्ट में कन्वर्जन होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहाँ से अपन लिखना शुरू करें कि भाई ये पॉइंट पे H2 एंड I2 है और इस पॉइंट पे HI है, तो ये ऊपर क्या होगा, यहाँ पे अपना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सो दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट। तो ये हो गया अपना, यहाँ पे आई आएगा अपना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए आपने जो बाहर से एनर्जी दिया दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, सिंपल। तो शुरू करना है अपने को डेफिनेशन से, और डेफिनेशन और ग्राफ बस दो ही चीज अगर इसमें याद रखते हो तो चलेगा, और एक आध दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, द एनर्जी गिवन टू रिएक्शन फ्रॉम आउटसाइड टू कन्वर्ट टू कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू activated complex is known as activation energy, and activation energy is symbolized as EA। बस आपको इतना पता चल गया काफी है। और एक और बात, अगर EA और E एवरेज इन दोनों को प्लस करो तो क्या मिलेगा, E दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसका मेरे पास तो जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन आफ्टर दिस क्वेश्चन फॉरगिव मी, बिकॉज मेरे पास इसका ये हैंड रिटन नोट्स नहीं है, बट आप जो भी बुक यूज करते हो, गाइड यूज करते हो, उसमें से इसका आंसर लिख सकते हो। हालांकि इसमें ये ग्राफ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन याद रखना और कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट, not last I think, explain the Maxwell Boltzmann distribution curve, and by the use of this curve we have to explain the fraction relationship between fraction of molecule that is take part into the reaction on increasing the 10 degree Celsius temperature. That is the base concept of this question. सबसे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को करना क्या था, तो उन्होंने पढ़ी जाकर आर्हेनियस की थियरी। उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने पढ़ा कि भाई आर्हेनियस नामक एक साइंटिस्ट है, आर्हेनियस ने ये बोला है कि भाई आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते हो तो रेट कांस्टेंट 2 टाइम्स इंक्रीज होता है। तो उन्होंने सोचा कि भाई अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है तो उसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा उसका मतलब क्या हुआ कि भाई रेट कांस्टेंट डबल, रेट ऑफ रिएक्शन डबल, तो द नंबर ऑफ, ध्यान से सुना, तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच आर गोइंग टू टेक पार्ट इनटू द रिएक्शन दैट्स आल्सो बिकम्स डबल। तो ये चीज उन्होंने इस ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन की। क्या बोला मैंने, फिर से मैं बोलूंगा, एक छोटा सा ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिक कर्व है, दिस इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। व्हाई इट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। Ne/nt लेंगे अपन y एक्स पे, और x एक्स पे यहाँ पे लिया जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक बात बताइए, आपके क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, एग्जांपल लेते हैं पहले, इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपके क्लास में मान लेते हैं 50 स्टूडेंट्स है, एक टेस्ट लिया 100 मार्क्स का, क्या ऐसा होगा
कि सबके 100 आउट 100 आए? नो। कैसा होगा, सबके 0 आए या 0 to 5 के बीच में आए? तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स मैक्सिमम आएंगे, मान लो 95 to 100, और जिनके मार्क्स मिनिमम आएंगे मान लो 0 to 5? ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे, 2-3 इस तरफ होंगे, 2-3 इस तरफ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 60 to 80 के बीच में अलाइन करेंगे या 50 to 80 के बीच में अलाइन करेंगे। तो जिनका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो मॉलिक्यूल्स बहुत कम, और जिनका काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है वो मॉलिक्यूल्स भी भाई बहुत कम होंगे। समझ में आई बात? तो यही बात मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, इसी क्लास वाली बात को उन्होंने ग्राफ पे एक्सप्लेन। कैसे? अब पहले ये Ne अपॉन Nt जो मैंने वाइट्स पे लिया है वो क्या है वो समझ। तो भाई Ne इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी E। माने ये वो मॉलिक्यूल है जिनका एनर्जी E है, नॉट E, इट्स E, डिवाइडेड बाय, इस Ne को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाय Nt। Nt क्या है? इट्स, एक सेकंड तो यहाँ से डिलीट ही कर। Nt क्या है? इट्स अ टोटल नंबर। चलिए आप समझ गए कि यहाँ से मैंने Ne को डिलीट कर दिया, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ Ne डिवाइडेड बाय Nt। चलो, सो T क्या है? इट्स अ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब हमें क्लेवर स्टूडेंट्स का एक रेशियो निकालना था और डल स्टूडेंट का भी एक रेशियो निकालना था, तो हमने क्या किया? Ne upon Nt ले लिया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी विद 100 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे लिख देते, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विद 0 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एक फ्रैक्शन मिल जाएगा। अब इस फ्रैक्शन को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी की जगह अपने एग्जांपल में क्या है? मार्क्स है। तो टोटल मॉलिक्यूल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, किसने? मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, इस ग्राफ के थ्रू। अब देखो, these are those number of student which gets a very lower mark, these are those number of student which gets a higher mark। तो ये जो एरिया है, मान लेते हैं कि भाई इतना एरिया, ये एरिया आपको शो नहीं करना है, ये एरिया लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल, ये एरिया हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल। धीरे 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 क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी मान लो कि E के ऊपर चला जाएगा, और जब उसका एनर्जी E के ऊपर जाएगा, देखो अगले ग्राफ में जो अपन ने y एक्स पे प्लॉट किया था वही चीज इस ग्राफ में अपन ने x एक्स पे प्लॉट की। तो जैसे ही इनका काइनेटिक एनर्जी E से ऊपर जाएगा वैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू करेंगे, उससे पहले इनका प्रोडक्ट में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा। करेक्ट। अच्छा, तो व्हाट इज दिस maximum apex point symbolized? This apex point of curve symbolized a maximum probable speed, maximum probable speed। इसका मतलब क्या होता है? maximum probable speed doesn't mean a maximum kinetic energy। ये वर्ड्स में अपने को कंफ्यूज नहीं होना। maximum probable speed means a number of fraction of molecule, this much of molecule। ये वो स्टूडेंट्स है, मतलब मान लेते हैं कि ये भाई 50 से 60, 50 to 70 मार्क्स वाला एरिया है, 60 to 70 मार्क्स वाला, जहां मैक्सिमम अलाइन करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस एरिया में आएंगे। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, ये दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ दिस मच ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले स्टूडेंट, मार्क्स वाले स्टूडेंट, इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल और इससे कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल, यहां से अगर ये जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, और इस तरफ जाओगे तो भी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। तो दिस एरिया इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो पूरा एरिया है, इस पहाड़ के नीचे वाला पूरा एरिया, दैट इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल those are take part into the reaction। out of those molecule Ne upon Nt is a fraction of molecule। तो ये वो फ्रैक्शन है जिनका काइनेटिक एनर्जी कम है। अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो ये वो फ्रैक्शन है जिनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। करेक्ट। हाँ, अब बात करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने कौन सा पॉइंट पकड़ा अरेनियस का, कि भाई इधर आओ, तुमने क्या किया? अरेनियस बोला 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया। तो चलो अभी हम लोगों को, स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि भाई 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने से एग्जैक्टली रिएक्शन में क्या हुआ। तो भाई
ये दूसरा कर्व भी है तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही, इसमें भी y एक्स पे तो वही आएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज Ne अपॉन Nt, और x एक्स पे क्या आएगा, x एक्स पे आएगा काइनेटिक एनर्जी। चलो ये वो ग्राफ मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ जो अपन ने ऊपर ड्रॉ कि भाई ये T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला ग्राफ है, करेक्ट, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला ये ग्राफ। नाउ दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते 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 यहां तक आया, ये अपन बाहर से दे रहे हैं यहां तक आ गया। अब इसके बाद इससे ज्यादा जिन मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी होगा, दिस पॉइंट इज एक्टिवेशन एनर्जी, इससे ज्यादा जिनका एनर्जी होगा वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मान लो कि ये आपका पासिंग पासिंग क्राइटेरिया है कि भाई इससे ज्यादा मार्क होंगे उन्हीं को आगे वाले स्टैंडर्ड में भेजा जाएगा, इससे कम मार्क वाले बैठो सारे इसी क्लास में, करेक्ट, ये बात है। अभी क्या किया, अभी समझो एक बात कि भाई मार्क्स कम आ रहे थे तो आ गए स्कूल के प्रिंसिपल हेडमास्टर, उन्होंने जम के आपको सटकाया, समझाया, प्यार से समझाया, धमका के समझाया, इन शॉर्ट आपको गर्मा गर्म कर दिया, पढ़ो 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 पढ़ो। तो आपके कुछ लोगों के हृदय परिवर्तन हो गए, कुछ को फिर से सटकाया, थोड़ा सा और गर्म किया, तो क्या किया, उनके आने से टेम्परेचर में गर्मी आ गई भाई, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो अब क्या हुआ, कुछ बच्चे और अब समझने लगे नहीं नहीं भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा वरना जम के डांट पड़ेगी। तो अब क्या होगा कि पहले कुछ बच्चे, अब मान लेते हैं कि पहले 40 बच्चे रिएक्ट कर रहे थे, अब ध्यान से सुनना, आउट ऑफ 100 40 बच्चे ऐसे थे, 40 बच्चे ऐसे थे जो पास हो गए, ये टोटल वो 40 बच्चे हैं जो पास हो गए। लेकिन अभी हेडमास्टर के बहुत धमकाने, इतना धमकाया कि बहुत धमकाया, और 40 बच्चे पास हो गए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हेडमास्टर के आने से गर्मी बढ़ गई तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, करेक्ट। तो पहले सिर्फ 40 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब और बच्चों ने क्या किया, पढ़ना शुरू कर दिया। तो सबसे पहली बात देखो कि जो पहला वाला ग्राफ था एट 10 डिग्री सेल्सियस, उसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड इतना था। अब सेकंड वाले में मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज हुआ, उसका मतलब पहले वाले में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लेस था और सेकंड में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गया। पहले 40 स्टूडेंट्स ही अच्छे से पढ़ रहे थे, अब और 40 अच्छे से पढ़ने लगे, मतलब टोटल 80 अच्छे से पढ़ने लगे, करेक्ट। तो अब क्या होगा, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दिस ग्राफ एपेक्स ऑफ दिस ग्राफ शिफ्टेड ऑन द राइट हैंड साइड एंड इट इज गुड फॉर द रिजल्ट ऑफ स्कूल, है ना। वही बात यहाँ पे भी हो रही है। अब क्या होगा कि ये वो काइनेटिक एनर्जी का पॉइंट है जिसके बाद आप पास हो सकते हो, मतलब जिसके बाद रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो सकता है। तो अब चलिए, अब ये पॉइंट यहाँ पे जाके खत्म। एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि चाहे ये T डिग्री सेल्सियस वाला कर्व हो चाहे T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस वाला कर्व हो, इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही आएंगे। भाई पहले 50 स्टूडेंट्स थे, अभी भी 50 स्टूडेंट्स ही है, कोई हेडमास्टर के आने के धमकाने की वजह से थोड़ी स्टूडेंट स्कूल छोड़ के चले जाएंगे या नया स्टूडेंट अचानक एडमिशन। तो एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स कांस्टेंट। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब या बोलोगे एरिया तो प्लस माइनस हो रहा है, ऊपर ज्यादा इसमें कम, हाँ भले इसमें कम है लेकिन यहां से इसमें ज्यादा हो गया, ये एरिया समझ में आई बात। एरिया अंडर द कर्व इज कांस्टेंट मींस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द रिएक्टेंट इज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज, करेक्ट। अब देखो मैं पहले वाला एरिया बनाता हूँ, पहले वाला एरिया, पहले के जो 40 स्टूडेंट्स थे वो ये है जो अच्छे से मार्क्स ला रहे थे। अभी क्या हुआ कि 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने की वजह से और भी 40 स्टूडेंट्स ने पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो मान लेते हैं कि इस एरिया में। अभी रिएक्शन की बात करते हैं, तो ये जो पिंक वाला एरिया है वो उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है जो 30 डिग्री सेल्सियस पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, इतना ही 40 और T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो भाई पहले कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये एक लमसम अमाउंट है 40, अभी और 40 कन्वर्ट हुआ, तो टोटल 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बिकम्स डबल। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने बोला कि सैल्यूट टू अरेनियस, उसकी बात सही थी। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट डबल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है एंड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच आर गोइंग टू टेक पार्ट इन रिएक्शन गोज ऑन डबल। so this is again Maxwell Boltzmann distribution curve conceptual understanding, इसको ध्यान से दूसरी बार सुनना और एग्जांपल के साथ कनेक्ट करके रखना वरना ये समझ में
कभी भी नहीं आएगा। एंड अगेन फॉरगिव मी, इसका भी मेरे पास हैंड रिटन नोट्स नहीं है, तो जो भी आप ये गाइड यूज कर रहे हो, रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो, उसमें बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट दिया है, आप डायरेक्टली उससे लिख सकते हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज कॉलिजन थियरी। बस 10 मिनट का काम है, फिर ये सेशन खत्म। और कॉलिजन थियरी, आई हैव टू टेल यू दैट कॉलिजन थियरी इज अगेन इंपॉर्टेंट 3 मार्कर 3-4 मार्कर का ये कंप्लीट पैकेज है। हालांकि ये कंसेप्ट बहुत पुराना है ना। ये कंसेप्ट तब का है जब लोगों को ये नहीं पता था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसी भी कोई चीज है। करेक्ट। नाउ collision theory given by two great scientists, Max Strauss and William Lewis। और उन्होंने मैक्स स्ट्रॉस एंड विलियम लेविस, करेक्ट, इन दोनों साइंटिस्ट को करना क्या था? इन दोनों ने कॉलिजन थियरी माने रिएक्शन, ये थियरी एक्सप्लेन करने के पीछे उन्होंने 2 एरिया पे फोकस, एक तो एनर्जिस्टिक मैटर एंड दूसरा था मैकेनिकल मैटर। ये 2 एरिया पे उन्होंने फोकस किया कि भाई कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो क्यों होता है। नाउ उनका इस थियरी को एक्सप्लेन करने के पीछे जो बेस था, जो प्रिंसिपल था, वो था काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के जो प्रिंसिपल है, सेम एज यूजुअल यहाँ पे अप्लाई करके उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि भाई कोई भी गैसेस, कभी भी दो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोई अगर रिएक्शन होता है तो वो क्यों होता है और कैसे होता है। इस रिएक्शन, इस पूरे आंसर को देखो, पहले तो साइंटिस्ट का नाम और प्रिंसिपल कौन सा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अपन टुकड़े टुकड़े में डिवाइड करके याद करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एजम्पशन ऑफ कॉलिजन, एजम्पशन मेड बाय मैक्स स्ट्रॉस एंड विलियम लेविस। एजम्पशन नंबर 1, रिएक्टेंट स्पेसिस आर एज्यूम्ड एज हार्ड स्फीयर। माने उन्होंने ये एज्यूम किया कि भाई जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो बड़े बड़े 2 गोले होते हैं, correct, and the reaction occurs only when, assumption number 2, reaction occurs only when there is a collision between this hard sphere। माने रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में तभी होगा, हार्ड स्फीयर तभी होगा जब जोर से टकराएंगे, एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट का ही वर्ड है कॉलिजन, सिंगुलर फॉर्म है कॉलिजन। तो जब तक ये 2 चीजें नहीं होगी तब तक कॉलिजन नहीं होगा। फिर उन्होंने किसी ने पूछा कि भाई ये कैसे पता करें कि कॉलिजन कितना हुआ, कितना अमाउंट में हुआ। उन्होंने बोला कि भाई देखो, इसके लिए हमारे पास एक और कंसेप्ट, एंड दैट इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। चलो एक रिएक्शन लेते हैं, मान लो A plus B, it converts into product on collision with each other, A and B are hard sphere reactant, correct। now rate of reaction is equal to, collision frequency के definition पे जा रहे हैं अभी अपन, rate of reaction is equal to ZAB into e raised to minus EA upon RT। now ZAB is the collision frequency of two reactant A and B। तो भाई collision frequency क्या है, बहुत सिंपल सी, एक सेकंड में जितने एक्सीडेंट होते हैं, that is called collision frequency। so the number of collision per second is known as collision frequency। फिर इन दोनों को पता चला कि अरे रे, अपन ने तो ये रिएक्शन किसके जैसा दे दिया, आर्हेनियस के जैसा दे दिया, K is equal to A into raised to minus EA upon RT। बोला कि भाई there must be some relationship between Arrhenius factor and collision frequency। इन दोनों का वैल्यू इफेक्ट करता है e रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी पे। और याद करो मैंने बोला था e रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी क्या है, दैट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, दैट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ विथ काइनेटिक एनर्जी E। ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनका काइनेटिक एनर्जी E या उससे ज्यादा होता है, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है आफ्टर कॉलिजन, करेक्ट। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉलिजन एंड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एंड एग्जाम्पल। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई देखो, ये तो समझ में आ गया कि e रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी जितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे और उनका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि क्या सारे कॉलिजन्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि भाई वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉलिजन, एक जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और दूसरे नहीं करते. So these two type of collision, one is known as effective collision और it's also known as fruitful collision. Fruitful मतलब fruit देने वाला collision. तो एक हो गया effective collision और दूसरा हो गया ineffective collision. भाई ये इफेक्टिव कॉलिजन और अनइफेक्टिव कॉलिजन में डिफरेंस क्या है पता कैसे चलेगा? तो दो चीजों से पता चल सकता. नंबर एक, एक तो जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं उनका एनर्जी ईटीएच या उससे ज्यादा होना चाहिए. मतलब ये ईटीएच क्या है? इट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी, करेक्ट. सो इफ the threshold energy of colliding molecule is more than ETH, if the energy of colliding molecule is more than ETH, then and then only that collision converts into product. But if the energy of colliding molecule is less than ETH, then you don't get product. Such type of collision is ineffective collision. सेकंड एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऊपर अभी अपन ने बात किया कि एनर्जिस्टिक और मैकेनिस्टिक मैटर पे इन्होंने फोकस किया. एनर्जिस्टिक तो ये हो गया कि भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए. भाई बहुत ज्यादा स्पीड होगा गाड़ी का तभी तो टकराने पर सड़क टूटेगा ना, अदरवाइज छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया तो कहाँ किसी को है, वो बात है यहाँ. अच्छा, अब एक और बात इंपॉर्टेंट और नई बात उन्होंने की. उन्होंने बोला कि भाई ये जो इफेक्टिव कॉलिजन है वो तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं जब आप प्रॉपर डायरेक्शन से टकराओ एक दूसरे के साथ. मतलब जब तक आपका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा. सो प्रॉपर ओरिएंटेशन कॉलिजन, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन कॉलिजन, अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो रिएक्टेंट का कन्वर्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा. तो यहाँ पे अनप्रॉपर ओरिएंटेशन से क्या हो रहा है? कॉलिजन हो रहा है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड अनइफेक्टिव कॉलिजन. अब आप बोलोगे कि भाई ये क्या है, ये तो नई बात सुनी कि प्रॉपर ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन मतलब आप मान लो कि डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन से टकराना चाहिए. अगर मेरे को मेरा सर फोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? पीछे वाली दीवार से जोर से यूं या यूं जाकर दीवार के आगे टकराना पड़ेगा. अगर मैं उस दीवार पे पूरा ऐसे टकराता हूँ तो सर को तो कुछ होगा नहीं. बोल तो क्या था, सर को फोड़ना था. तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर डायरेक्शन कॉलिजन. तो दो मॉलिक्यूल्स को सही दिशा से टकराना पड़ेगा. इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. ये एग्जांपल एक बहुत ही बड़े और इंपॉर्टेंट रिएक्शन का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन, जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. करेक्ट. चलो, CH3Br. अब Br कौन से साइड है? कार्बन के इस साइड है, प्लस OH माइनस. और इस कार्बन के साथ दूसरे 3 हाइड्रोजन है जो छोटे छोटे उसके भाई है, उसे कोई नहीं डरेगा. अब OH माइनस की तमन्ना है कि कार्बन उसे मिल जाए. तो OH माइनस क्या करेगा? उसने सोचा कि चलो टकराता हूं. तो वो एकदम घोड़े पे सवार होकर बैठ गया टकराने के लिए. ब्रोमोमीथेन से जाकर सीधा धुड़ुम करके उसने क्या कर दिया? कोलिजन कर दिया. अब जिस डायरेक्शन पे बीआर खड़ा था उसी डायरेक्शन पे OH घर में घुसने का कोशिश किया. तो बीआर ने फटकार के उसको भगा दिया, चल भाग इधर से. तो बोला नहीं आने दूंगा, कार्बन को मिलने ही नहीं दूंगा तुझे. तो दिस इज नोन एज अनप्रॉपर ओरिएंटेशन कॉलिजन. और यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. अब OH ने प्लान बनाया कि पहले अपन क्या होता है, कभी कभी अनसक्सेस हो जाते हैं, फेलर हो जाते हैं, तो अभी अपन स्ट्रेटेजी बनाते हैं. तो OH ने स्ट्रेटेजी बनाया, क्या करूं क्या करूं. अब OH ने एक आइडिया बनाया. OH ने बोला कि कोई बात नहीं, जिस डायरेक्शन पे BR है मैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करूंगा. चलिए, तो OH ने क्या किया? पिछले दरवाजे से कार्बन पे अटैक किया. अब कार्बन को भी तो चेंज चाहिए था, उसको भी तो कनेक्ट होना था, उसकी भी तो तमन्ना तो थी, सिर्फ ऐसा नहीं OH की थी. तो कार्बन ने क्या किया? धीरे 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 जो पुराने बॉन्ड थे वो टूटने लगे, नए बॉन्ड बनने लगे. दिस इज नोन एज साइमल्टेनियस फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. और फाइनली कार्बन ने भगा दिया Br को घर से बाहर और OH को घर के अंदर. तो ये बन गया अपना मिथेनॉल. So we get the product by proper orientation collision. And the last equation of the chapter chemical kinetics जो खत्म हो रहा है अगले सिर्फ 30 सेकंड 1 मिनट में, जैसे ज्यादा समझ लीजिए. अब ये मैक्स रॉस और विलियम लेविस को बुलाया कि भाई ये बात तो सारी समझ में आ गई. अब ये बताओ कि मान लो 100 कॉलिजन हो रहे तो उसमें प्रोबेबिलिटी कितना? क्या आप अंदर पकड़ पकड़ के तो काउंट नहीं कर सकते मॉलिक्यूल्स को कि भाई इसका इफेक्टिव? प्रोबेबिलिटी काउंट कर सकते हो. उन्होंने बोला कि भाई एक छोटा सा फैक्टर ऐड कर दो, एंड दैट फैक्टर इज नोन एज
स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर। क्या था इक्वेशन? इक्वेशन क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ZAB इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी। तो इसमें राइट साइड पे कैपिटल P ऐड कर देना। नाउ P इज इक्वल टू स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। It gives the number of probability of effective collision which can convert into product, and this is all about the chemical kinetics. करेक्ट। सो यहाँ पे आपका केमिकल काइनेटिक्स खत्म होता है। केमिकल काइनेटिक्स में आपका जो कद है वो बहुत बड़ा बन चुका है। अभी आपको क्या करना है? एग्जांपल सॉल्व करने स्टार्ट करने हैं। करेक्ट, एमसीक्यू सॉल्व करने स्टार्ट करने। कभी भी कोई कंफ्यूजन हुआ, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। यू कैन कमेंट ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, मैं आपको हो सके उतना जल्दी, जैसे ही मैं फ्री पढ़ूंगा सॉल्यूशन भी दे दूंगा। करेक्ट। और इस मिशन को हो सके उतने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। दैट इज द ओनली थिंग विच आई वांट फ्रॉम योर साइड। The rest of everything I will deliver in the best way from my side. Okay, so that's all in unit number 4. Bye bye.